Hey students, today I will start legislature part, that is parliament. Working of institutions. Organs can be divided into three parts: legislature, executive and judiciary. And first of all, in legislature, I have discussed with you powers and functions of president, and I'm going to discuss about the functions of parliament. In our country, there is a parliamentary form of government, means parliament is supreme, and parliament has two houses, Lok Sabha and Rajya Sabha. So, why we need parliament? First of all, we should know why there is a need of parliament in a country. What is the main function of parliament? The main function of parliament is legislating, means to make laws. So, we need parliament in a country because parliament is a law making authority. Law making authority means all the bills, all the rules, all the, you can say, new legislations are passed in the parliament, in Lok Sabha and in Rajya Sabha. There are two houses of parliament in India. Clear? But in some countries, maybe one house can be there. But in our country, there are two houses of parliament. Then second is control on executive. Means we need parliament in our country to put control on executive. Executive means prime minister, council of ministers and other ministers, so that these ministers can perform their duties and functions very well because they are answerable. Prime minister and other ministers, they are answerable. Clear? In the parliament, in the Lok Sabha, all the members, they can ask questions from the ministers about their departments, and they can get any kind of information from them. So we need parliament in the country to put control on the executives. Then third is to control finance. We need parliament in the country to control finance. As you know, parliament passes the budget. Budget first of all introduced in Lok Sabha, then in Rajya Sabha, and then budget is passed by the president. So we need parliament in our country to control finance, to control money of our country. Then to make uniform laws, same laws for all the states. We need parliament so that laws can be फ्रेम यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक ही तरह के जो लॉज हैं, सेम कैटेगरी के जो लॉज हैं, वो पूरी कंट्री के लिए बनाए जाए. बेसिकली देखा जाए, इन आवर कंट्री डिफरेंट स्टेट्स आर देयर, यूनियन टेरिटरीज आर देयर, and all the states having their different stateless subjects, and these state government, they formulate laws according to them. But we need parliament to make same kind of rules and regulations for the whole country, and that is the main function of parliament, to make uniform laws for the whole country. Then it is highest forum of discussion also. कंट्री में जो भी इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं उनके रिगार्डिंग हमारी कंट्री में लोकसभा और राज्यसभा में उसकी डिस्कशन होती है. एंड इसका लाइव टेलीकास्ट आप टेलीविजन पे देखते हो, मीडिया पे सुनते हो, डिबेट एंड डिस्कशन की फॉर्म में, जिससे आपको ये पता लगता है कि हाउ मच दीज एमपीज, members of parliament, are concerned with the problems of common public. So in this way, we can say importance of parliament, need of parliament in our society, in our country is very much. ठीक है, तो ये जस्ट मैंने आपको ये बताया कि पार्लियामेंट के फंक्शंस नहीं है बेटा, मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि व्हाई डू वी नीड. ठीक है, हमें पार्लियामेंट की जरूरत क्यों है. अब इसके बाद नेक्स्ट है, आपको ये पता होना चाहिए कि पार्लियामेंट के जो अलग अलग दोनों हाउस हैं, चाहे वो लोकसभा है, राज्यसभा में, उनके बीच में डिफरेंस क्या है एंड विच हाउस इज मोर पावरफुल. ठीक है, अब सबसे पहले आप इनका डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए, उसी के बाद आपको साइड बाय साइड ये भी पता लगेगा कि दोनों में से कौन सा हाउस पावरफुल है. लोकसभा,
हमारी कंट्री में जो लोकसभा है इसको डायरेक्ट हाउस भी कहते हैं। डायरेक्ट हाउस क्यों कहते हैं? बिकॉज मेंबर्स ऑफ लोकसभा दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड फ्रॉम द सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, लोकसभा जो है वो पॉपुलर हाउस है। क्यों? क्योंकि जितने भी एमपीज हैं दीज आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है, पॉपुलर का मतलब होता है इनकी पॉपुलैरिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू राज्यसभा मेंबर्स। हमें हमारी कंट्री के लोकसभा के जो मेंबर्स है उनकी इंफॉर्मेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू राज्यसभा, क्योंकि हमने इनको इलेक्ट करके भेजा है। ठीक है, इसके अलावा लोकसभा जो है, ठीक है, इसको लोअर चैम्बर भी कहा जाता है, लोअर हाउस भी कहते हैं। और दूसरी तरफ राज्यसभा इज नोन एज अपर चैम्बर। राज्यसभा इसको कहा जाता है इनडायरेक्ट हाउस। क्यों? बिकॉज मेंबर्स ऑफ राज्यसभा कैन बी इलेक्टेड बाय द एमएलएज। ठीक है, राज्यसभा के मेंबर्स को सिटीजन्स जो हैं वो इलेक्ट नहीं करते हैं, इनको इलेक्ट करते हैं एमएलएज। तो ये इनडायरेक्ट हाउस है। ठीक है, लोकसभा क्या है? टेम्पररी, इट इज अ टेम्पररी हाउस। राज्यसभा क्या है? परमानेंट। Why? The term of Lok Sabha is 5 years. After 5 years, new elections will be held and newly Lok Sabha will be elected. ठीक है, तो जो पुराने एमपीज हैं वो ऑटोमेटिकली उनकी पोस्ट खत्म हो जाएगी। नई लोकसभा इलेक्शंस के बाद जो न्यू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है दे विल ज्वाइन द ऑफिस। बट इन राज्यसभा द मेंबर्स हाउस इज परमानेंट बट मेंबर्स गेट रिटायर्ड आफ्टर 6 years। तो अल्टीमेटली देखा जाए जो राज्यसभा के मेंबर्स है ना, उनका जो टाइम पीरियड है टेन्योर है। टेन्योर का मतलब होता है उनका जो टोटल वर्किंग टाइम पीरियड है वो कितना है? 6 years टेन्योर। ऑटोमेटिकली जब किसी राज्यसभा के मेंबर के 6 years हो जाते हैं वो रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह पे फिर नए इलेक्शंस होते हैं। बेसिकली देखा जाए लोकसभा जो है वो टेम्पररी है, राज्यसभा परमानेंट है। जब लोकसभा डिसॉल्व होते हैं तो पूरी की पूरी लोकसभा एक ही बार में डिसॉल्व हो जाती है, लेकिन राज्यसभा कभी भी इकट्ठी डिसॉल्व नहीं होती है। राज्यसभा के मेंबर्स की जब टर्म 6 year कंप्लीट हो जाती है तो वो रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह पर फिर नए इलेक्शंस होते हैं। इसका मतलब है कि राज्यसभा जो है वो इकट्ठी जो है डिसॉल्व कभी नहीं होती है, लेकिन लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि लोकसभा जो है वो टेम्पररी हाउस है और राज्यसभा जो है वो परमानेंट हाउस। क्लियर? अभी ये तो था इनकी टर्म्स या पोजीशंस के बारे में। अब आ जाती है इनकी पॉपुलैरिटी या सीट्स। इनमें से कौन सा हाउस जो है वो ज्यादा पॉपुलर? अब टोटल नंबर ऑफ सीट्स, आपको सीट्स पता होनी चाहिए बेटा। टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है? 545 लोकसभा में है। इनमें से 543 इलेक्टेड है and 2 are nominated by the president. It means total number of seats in the Lok Sabha are 545. Out of 545, 543 are elected directly by the people and 2 are nominated by the president. और ये जो 2 मेंबर्स हैं ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से नॉमिनेट किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट। दूसरी तरफ राज्यसभा के टोटल मेंबर्स कितने हैं? 250। आउट ऑफ 250, 238 आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। इनडायरेक्टली का मतलब होता है हम ये भी कह सकते हैं बाय द एमएलएज। Plus 12 members are nominated. 12 members are nominated by the president.
So again I am repeating. Yes, in Rajya Sabha total members are 250. 238 are elected by the MLAs and 12 members are nominated by the president. These 12 members, they are very famous in the field of math, science, astronomy, social service, sports, or any other, you can say, department as decided in the constitution by the government. So, on the whole, we can say there are 545 members of Lok Sabha and 250 members of Rajya Sabha. So, these all members, they consist a parliament of our country. तो जब भी मैं पार्लियामेंट की बात करती हूँ तो पार्लियामेंट में लोकसभा के कितने मेंबर्स हैं 545 एंड राज्यसभा के कितने मेंबर्स हैं 250. इनमें से इलेक्टेड मेंबर्स कितने हैं और नॉमिनेटेड मेंबर्स कितने हैं वो आपको पता होना चाहिए. इलेक्टेड मेंबर्स कितने हैं 543 एंड नॉमिनेटेड कितने हैं 2 इन लोकसभा. सिमिलरली राज्यसभा में 238 आर इलेक्टेड एंड 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट. ठीक है, यहां तक क्लियर है बेटा? एनी डाउट? Raise your hand if you have any doubt. Yes, any doubt beta? Yes, Bhumika. हाँ जी. Yes, Bhumika, any doubt beta? Yes, ask the question. मैम लोकसभा का टेन्योर कितने एज के लिए होता है? 5 years. Tenure of Lok Sabha members are 5 years. But they can be dissolved earlier. यानी कि अगर लोकसभा पहले डिसॉल्व हो जाती है तो इनका टेन्योर पहले भी खत्म हो जाता है और उसके बाद कंट्री में मिड टर्म इलेक्शंस करवाए जाते हैं. इट इज क्लियर? क्लियर है? यस मैम. यस मैम. Yes. So next is about the popularity of house. Which house is more popular? Lok Sabha or Rajya Sabha? Lok Sabha is more popular. Why? Because Lok Sabha is powerful, has more powers as compared to Rajya Sabha. Which are the different powers? Number 1, regarding money bill. But the bills are of 2 types, ordinary bill or money bill. Ordinary bill can be introduced in any house. Ordinary bill that is not related to money or any other different topics. ठीक है, जो ऑर्डिनरी बिल का मतलब क्या होता है जिसमें मनी इन्वॉल्व नहीं होता, टैक्सेस इन्वॉल्व नहीं होते, बजट इन्वॉल्व नहीं होता. ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जो बिल्स होते हैं, दीज बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस इन एनी हाउस फर्स्ट. व्हाट मनी बिल and budget will always be introduced in Lok Sabha. मनी बिल और बजट जो है वो सबसे पहले लोकसभा में पहले जाता है. यहाँ पे प्रॉपर उसकी अलग अलग स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3. स्टेज 1 क्या होती है? रिगार्डिंग द डिस्कशन ऑफ द बिल. स्टेज 2 क्या होती है? जिसमें अलग अलग कमेटीज बनाई जाती हैं. स्टेज 3 क्या होती है? जिसमें प्रॉपर वोटिंग करवाई जाती है. और उसके बाद लोकसभा में मनी बिल या बजट पास करवाया जाता है. इसके बाद बिल जो है वो राज्यसभा में जाता है. राज्यसभा में भी सेम प्रोसीजर जो है वो रिपीट किया जाता है और उसके बाद बिल कहाँ पे जाता है? प्रेसिडेंट के पास फाइनल अप्रूवल या फाइनल साइन होने के लिए. ठीक है, तो लोकसभा और राज्यसभा में से हमेशा याद रखना मनी बिल और बजट ऑलवेज बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा फर्स्ट. ठीक है, ये पहले राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होते. क्लियर? सेकेंड पावर इज regarding the question hour and vote of no confidence. Question hour. Question hour means whenever the session of Lok Sabha is held, opposition or any MP can ask question from the department head, means ministers, and that particular 1 hour is given to them. यानी कि 1 hour दिया जाता है जिसमें कोई भी MP या opposition जो है
वो रूलिंग अथॉरिटी, रूलिंग पार्टी से या किसी भी मिनिस्टर से, फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, they can ask any type of question from them because they are answerable. Whatever they are doing, they are answerable in front of common public and even in the Lok Sabha also. लेकिन क्वेश्चन आर राज्यसभा में नहीं होता, राज्यसभा में क्वेश्चन आर नहीं होता है, लोकसभा जो है सिर्फ क्वेश्चन आर उसी में ही होता है। तो ये एक तरह से लोकसभा जो है वो मोर पावरफुल एज कंपेयर टू राज्यसभा बिकॉज क्वेश्चन आर इज हेल्ड इन द लोकसभा ओनली। Then vote of no confidence. It means if in the Lok Sabha, members of parliament, they are not satisfied with the department head, with the minister, then they can do voting for that. वो उसके लिए वोटिंग करते हैं और ऐसे में उस पर्टिकुलर मिनिस्टर के अगेंस्ट कोई भी स्कैम या क्राइम जो है वो प्रूव हो जाता है, तो ऐसे में उस मिनिस्टर को पोस्ट से रिमूव भी किया जा सकता है बाय पासिंग वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है कि अब लोकसभा को उस मिनिस्टर पे ट्रस्ट नहीं रहा, इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट वोटिंग कर रहे हैं। और अगर 2/3 मेजॉरिटी से उस पर्सन के अगेंस्ट वोटिंग हो जाती है, दैट मिनिस्टर कैन बी रिमूव फ्रॉम देयर डिपार्टमेंट, और उनकी जगह फिर कोई और डिपार्टमेंट जो है मिनिस्टर जो है उनको हेड बनाया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आर एंड वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो सिर्फ लोकसभा में ही होता है, राज्यसभा में नहीं होता। तो ये भी एक तरह से लोकसभा की पॉपुलैरिटी शो करता है, लोकसभा जो है उसकी पावर्स जो है वो ज्यादा शो करता है। ठीक है, देन थर्ड इज रिगार्डिंग ज्वाइंट सेशन। Whenever any conflict or dispute arises regarding any bill, अगर किसी भी बिल से रिलेटेड, किसी भी लॉ से रिलेटेड कोई भी इशू, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो होता है दोनों हाउसेस के बीच में, तो ज्वाइंट सेशन इज कॉल्ड अपॉन बाय प्रेसिडेंट। अब जब ज्वाइंट सेशन होता है तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, दोनों हाउस की इकट्ठी मीटिंग करवाते हैं, और जब इकट्ठी मीटिंग होगी तो नंबर ऑफ पार्लियामेंट मेंबर्स किसके ज्यादा हैं, लोकसभा के हैं। तो जब भी वोटिंग करवाई जाएगी तो ऑटोमेटिकली इनका जो परसेंटेज है, इनका जो वोटिंग परसेंटेज है वो ज्यादा होगा। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि लोकसभा की जो डिसीजंस हैं या लोकसभा की जो बिल, उनके मेंबर्स, जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा, उनका जो डिसीजन है वो सुपीरियर होगा एज कंपेयर टू राज्यसभा। ठीक है, अदर देन दैट राज्यसभा कैन डिले बिल फॉर 14 days। क्लियर, इफ द बिल इज पास इन लोकसभा, बिल जो है वो लोकसभा में पास हो गया, ठीक है, और उसके बाद बिल राज्यसभा के पास गया, राज्यसभा कैन डिले बिल फॉर 14 days। लेकिन 14 days के बाद अगर बिल जो है, ठीक है, वापस लोकसभा में आना चाहिए और राज्यसभा उसमें कुछ चेंजेस अगर करने को बोलती है, ठीक है, उसमें कुछ चेंजेस कर दिए जाते हैं सपोज, तो उन चेंजेस को मानना या ना मानना लोकसभा पे डिपेंड करता है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर राज्यसभा ने उस बिल में कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस करने के लिए कहा है तो उनको मानना या ना मानना लोकसभा पे डिपेंड करता है कि वो उनको चेंजेस को इंट्रोड्यूस कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि राज्यसभा किसी भी बिल को 14 days के लिए रोक सकती है और उसके बाद अगर कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस करने के लिए कहा गया है तो वो चेंजेस लोकसभा कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। तो ये भी लोकसभा की पॉपुलैरिटी, लोकसभा की पावर को शो करता है कि लोकसभा जो है वो बिल में चेंजेस को इंट्रोड्यूस कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। ठीक है, तो ये है लोकसभा की पावर्स। इसके अलावा राज्यसभा की भी कुछ पावर्स हैं। ठीक है, राज्यसभा अगर बनाई गई है तो उसकी भी कुछ पावर्स है। अब राज्यसभा की कोई स्पेशल पावर्स क्या है? नंबर 1, राज्य मीन स्टेट, राज्यसभा स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है। राज्यसभा के जितने भी मेंबर्स हैं, ठीक है, दे आर इलेक्टेड बाय द एमएलएज ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। तो राज्यसभा किसी भी सब्जेक्ट को स्टेट लिस्ट में इंट्रोड्यूस कर सकती है। स्टेट लिस्ट आपको पता है स्टेट लिस्ट क्या होती है बेटा?
स्टेट लिस्ट, कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिस्ट सिस्टम है उसमें से सेकंड नंबर की जो लिस्ट है, इसमें कुछ सब्जेक्ट्स के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। तो राज्यसभा जो स्टेट लिस्ट है, किसी भी नए सब्जेक्ट को स्टेट लिस्ट में इंट्रोड्यूस कर सकती है। अगर राज्यसभा को ये लगता है कि इस स्टेट लिस्ट में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होने चाहिए जिनके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सके, तो उनको स्टेट लिस्ट में ऐड किया जा सकता है। यानी कि जो सेकंड नंबर की लिस्ट है स्टेट लिस्ट, उसमें जो भी सब्जेक्ट्स ऐड किए जाएंगे दैट विल बी डिसाइडेड बाय द राज्यसभा। अगेन आई एम रिपीटिंग, राज्यसभा के पास भी कुछ स्पेशल पावर्स हैं कि स्टेट लिस्ट यानी कि जो सेकंड नंबर की लिस्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, लिस्ट सिस्टम के अंडर जो सेकंड नंबर की लिस्ट आती है जिसमें स्टेट से रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें स्टेट से रिलेटेड लॉज बनाए जाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है, ठीक है, उसमें राज्यसभा कैन डिसाइड विच सब्जेक्ट्स बी एडेड इन द स्टेट लिस्ट। और अगर राज्यसभा को लगता है कि स्टेट लिस्ट में कुछ और नए सब्जेक्ट्स ऐड किए जाने की जरूरत है तो दे कैन ऐड। इसका मतलब है कि हमारी कंट्री में राज्यसभा जो है वो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। लोकसभा लोगों को रिप्रेजेंट करती है, राज्यसभा स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है, ताकि जितनी भी हमारी कंट्री में स्टेट्स हैं उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दी जा सके। क्लियर? सेकंड इज अबाउट इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। IAS मीन्स इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ठीक है। हमारी कंट्री में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स लाइक फाइनेंस, पुलिस, IPS इंडियन पुलिस सर्विस, फॉरेस्ट इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो अगर राज्यसभा को ये लगता है कि किसी नए डिपार्टमेंट की जरूरत है तो वो भी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में वो ऐड कर सकते हैं। यानी कि अगर राज्यसभा को ये लगता है कि किसी नए डिपार्टमेंट की जरूरत है, लाइक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, ऑडिट डिपार्टमेंट है, अगर राज्यसभा को ये लगता है कि किसी नए डिपार्टमेंट जो कि IAS एग्जाम यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में इंक्लूड किया जाना चाहिए, तो राज्यसभा उसको भी जो है वो डिसाइड कर सकती है। तो ये कुछ स्पेशल पावर्स हैं राज्यसभा की। तो ऑन द होल आई हैव डिस्कस्ड विद यू अबाउट द डिफरेंट पावर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा कंबाइंड पार्लियामेंट। जब भी हम पार्लियामेंट की बात करते हैं तो पार्लियामेंट मीन्स लोकसभा एंड राज्यसभा। These are the two houses of parliament. Both have separate functions, उनके अलग अलग functions हैं, बट इन दोनों में से सुपीरियर हाउस कौन सा है? लोकसभा, क्योंकि लोकसभा जो है वो पॉपुलर है, लोगों को लोकसभा के मेंबर्स की नॉलेज ज्यादा है क्योंकि लोगों ने उनको इलेक्ट करके भेजा है, ठीक है। एंड इनकी टर्म जो है वो 5 years होती है, बिफोर 5 years दे कैन बी रिमूव फ्रॉम देयर पोस्ट इफ लोकसभा डिसॉल्व। लेकिन राज्यसभा क्या है? राज्यसभा इज परमानेंट, राज्यसभा परमानेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो एक बार राज्यसभा मेंबर बन गया वो परमानेंट है। राज्यसभा के मेंबर की भी जो टर्म है दैट इज 6 years। सपोज सचिन तेंदुलकर वाज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, 6 years कंप्लीट होने के बाद वो रिटायर हो गए, उनकी जगह पे किसी और मेंबर को राज्यसभा का मेंबर बनाया गया। क्लियर? तो इसका मतलब क्या है कि हमारी कंट्री में दोनों ही हाउस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकसभा लोगों को रिप्रेजेंट करती है, राज्यसभा स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है। क्लियर? अब आ जाइए पार्लियामेंट के फंक्शंस। फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट जब भी हम बात करते हैं तो कंबाइन मीन्स दोनों ही, लोकसभा और राज्यसभा। नंबर 1, लेजिस्लेटिव फंक्शंस। लेजिस्लेटिव फंक्शंस जब भी हम लिखते हैं, लेजिस्लेटिव मीन्स लॉ मेकिंग, यानी कि पार्लियामेंट का लॉ मेकिंग फंक्शन क्या है, ठीक है। तो लॉ मेकिंग में हम आपको पता होना चाहिए कि पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स गिवन इन द लिस्ट सिस्टम। इसमें मेन आपने लिस्ट सिस्टम को एक्सप्लेन करना, ठीक है। अब ये लिस्ट सिस्टम का मतलब क्या है? इन द आर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 4 लिस्ट आर गिवन: यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, concurrent and residuary। अब इन 4 लिस्ट में मैं आपको एक एक एग्जांपल दे रही हूं। इनमें कुछ सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। सब्जेक्ट्स का मतलब होता है कि कुछ डिपार्टमेंट्स हैं। सब्जेक्ट का जब भी मतलब है, सब्जेक्ट का मतलब है कुछ डिपार्टमेंट्स हैं।
और उन डिपार्टमेंट से रिलेटेड लॉज बनाने का राइट दो तरह से डिवाइड किया गया है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट को, एक स्टेट गवर्नमेंट को। सबसे पहले यूनियन लिस्ट में वो डिपार्टमेंट्स हैं, वो सब्जेक्ट्स हैं। यूनियन का मतलब ही क्या है? सेंटर। इट मींस यूनियन लिस्ट में जो डिपार्टमेंट्स हैं, इनके रिगार्डिंग लॉ बनाने का जो राइट है, ठीक है, वो किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल बैंकिंग, डिफेंस, क्लियर? बैंकिंग सेक्टर है, डिफेंस जो है, इसके रिलेटेड लॉ बनाने का जो राइट है वो किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, ठीक है। इसके बाद है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनके रिगार्डिंग लॉ बनाने का जो राइट है वो किसको दिया गया है? स्टेट गवर्नमेंट। यस, स्टेट लिस्ट में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट से रिलेटेड। अब फॉर एग्जांपल पंजाब गवर्नमेंट है, पंजाब गवर्नमेंट अपने फॉरेस्ट से रिलेटेड कोई भी लॉ बना सकती है, ठीक है। कंकरेंट, कंकरेंट का मतलब होता है बोथ सेंटर एंड स्टेट। यानी कि कंकरेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, इनके ऊपर लॉ बनाने का राइट सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है, स्टेट गवर्नमेंट का भी। फॉर एग्जांपल एजुकेशन, एजुकेशन की बात की जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट सीबीएसई, ठीक है, जितने भी सीबीएसई स्कूल हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, तो एजुकेशन से रिलेटेड जो है वो लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है। स्टेट की बात की जाए तो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड, ठीक है, तो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड यानी कि पंजाब गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो भी एजुकेशन से रिलेटेड लॉ बना सकती है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड दोनों ही, चाहे वो सेंटर हैं चाहे स्टेट हैं, दे कैन मेक लॉज, ठीक है। देन इज रेजिड्यूरी। रेजिड्यूरी का मतलब क्या होता है कि हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिनकी इंपॉर्टेंस बाद में फील हुई, उनके रिगार्डिंग लॉ बनाने का जो राइट है दैट इज अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइबर लॉज, सोशल मीडिया, आईटी सेक्टर, ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो रेजिड्यूरी में रखे गए हैं, ठीक है। तो ये सारा बेटा लेजिस्लेटिव फंक्शन है, किसका है? पार्लियामेंट। यानी कि पार्लियामेंट, हमारी कंट्री की जो पार्लियामेंट है, ठीक है, उनको लॉ बनाने के लिए अलग अलग लिस्ट दी गई हैं और इन लिस्ट में अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, और इन सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो मेन लॉ बनाती है, यूनियन लिस्ट, देन कंकरेंट लिस्ट, देन रेजिड्यूरी। इनमें से सिर्फ स्टेट लिस्ट, यानी कि जो स्टेट लिस्ट है उनमें लॉ बनाने का जो राइट है वो किसका है? स्टेट गवर्नमेंट का, ताकि किसी भी तरह की कोई भी कंफ्यूजन जो है वो राइज ना हो। गवर्नमेंट को पता होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कि उन्होंने कौन से लॉज बनाने हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो लॉज बनाने दैट इज पार्लियामेंट, सेंटर मींस पार्लियामेंट, ठीक है। जब स्टेट की बात आती है तो स्टेट की गवर्नमेंट, स्टेट की जो अपनी पार्लियामेंट, स्टेट की जो अपना हाउस होता है, ठीक है। तो जब भी मैं आपको यहाँ पे बात बताती हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती मींस पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स गिवन इन यूनियन लिस्ट, देन इन कंकरेंट एंड इन रेजिड्यूरी। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमारी कंट्री में सेंटर एंड स्टेट्स बोथ आर इंटीग्रेटेड। इफ एनी कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस रिगार्डिंग बोथ सेंटर और स्टेट, दोनों में से अगर कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है सेंटर और स्टेट के बीच में, देन ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रिवेल, क्योंकि हमारी कंट्री में सेंटर सुप्रीम है। आई एम अगेन रिपीटिंग, इफ एनी प्रॉब्लम अराइजेस between the center and state government, then the final decision will be taken by central government, final decision will be taken by parliament, ठीक है। So we can say that in our country, no doubt parliament is supreme, central government is supreme, but state governments also given different subjects and they can make laws independently, clear। तो इस तरह से हमारी कंट्री में पार्लियामेंट जो है वो लेजिस्लेशन यानी कि लॉ मेकिंग फंक्शंस परफॉर्म करती है।
एंड फर्दर ये आपको पता ही है कि लॉ मेकिंग कैसे होती है, हाउ बिल बिकम एन एक्ट, बिल जो है वो लॉ कैसे बनता है, ठीक है। बिल दो तरह के होते हैं, ऑर्डिनरी बिल या मनी बिल, ठीक है। सबसे पहले बिल जो है वो किसी भी हाउस में जा सकता है, ऑर्डिनरी बिल किसी भी हाउस में जा सकता है, लेकिन मनी बिल हमेशा लोकसभा में जाता है, या बजट हमेशा लोकसभा में जाता है, ठीक है। उसके बाद एक हाउस में बिल पास होने के बाद फिर वो सेकंड हाउस में जाता है, उसके बाद प्रेसिडेंट के साइन होते हैं, और साइन होने के बाद फाइनली वो बिल जो है वो लॉ बन जाता है। लॉ का मतलब है फाइनली उसको इम्प्लीमेंटेशन जो है वो उसकी की जाती है। और इस तरह से हमारी कंट्री में लेजिस्लेटिव यानी कि लॉ मेकिंग जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। क्लियर?